Hello, you are welcome in this class under the new program, and today we are going to do chapter triangles of class 9th, and in this class we will do congruent figures. What is congruency of two figures? What are corresponding angles and sides into congruent triangles? CPCT, different congruency rules for triangles. Angle opposite to equal side of isosceles triangle are equal. This side opposite to equal angles of a triangle are equal. Let us start. Do you know the meaning of congruent? Don't worry, we will do today. Here you can see different type of figures on the screen, and some figures are of type this. They will cover each other exactly if they are put on each other. For example, figure A and figure G will cover each other properly. Figure D and figure I, figure E and figure G. Okay. So, geometrically, two figures are congruent if they superimpose each other. कि दो ऐसी आकृतियां अगर एक के ऊपर हम दूसरी को रखें तो वो उसको पूरा पूरा ढक ले. फॉर एग्जाम्पल, हमारे हैंड्स, पेजेस ऑफ ए बुक, and we will now move so you can say congruent figures. Congruent figures are the figures which superimpose on putting. Okay, now we will do some more properties of congruent figures. Congruent figures have same shape as well as size. If two figures have same shape and size, then they are exactly equal to each other. They are exactly equal to each other. Here you can see this figure A and figure B are congruent to each other. Mirror example is the example of congruent figure. Mirror image. Our mirror image is same as we. So our mirror image is congruent to our image. One more thing, if we overlap, yes, superimpose, they cover each other. Here you can see coins. There are different coins, and they are put together, they cover each other. On overlapping, they covered each other. It can happen that two figures may seem different, but they can be congruent because after floating and rotating, they can have same shape. Now we will move on congruency of triangles. As congruent figures have same shape and size, so congruent triangles will also have same shape and they will be same in size. Or you can say congruent figures have same area. Same shape क्या अप्लाई करती है? सेम एरिया. क्या इसका रिवर्स भी ट्रू है? इट कैन नॉट बी ट्रू. दो आकृति हमारे पास ऐसी हो सकती हैं कि जिनका एरिया सेम हो बट दे आर नॉट congruent. Okay, congruency implies same area, but same area
does not implies congruency. Does not implies congruency. So, if two triangles are congruent, then three sides and angles of one triangle are equal to another triangle. Or you can say after rotating and overlapping, they covered each other. Here you can see two triangles, triangle 1, A, B, C, and here is another triangle, P, Q, R. If side AB is equal to side PQ, BC equal to side QR, and CA is equal to side RP. Okay. If all the three sides of one triangle are equal to corresponding sides of another triangle, then triangles are congruent. Same relation will be in angles. In triangle ABC, if angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, angle C equal to angle R, then triangle R equal to triangle or congruent to triangle PQR. Now the question arises कि how we will represent congruent triangle. What is the symbol of congruency? What is the symbol of congruency? This is the symbol of congruency. If the triangle ABC, if the triangle ABC, if triangle ABC is congruent to triangle PQR, then we put the symbol between them, this one. This is known as the symbol of congruency. This is the known as symbol of congruent. If two triangles are congruent, then we write as triangle ABC is congruent to triangle PQR. Next, we will read about corresponding parts of congruent triangle. Now, first question arises, what is corresponding part? What is corresponding part? We will discuss in a right angle triangle. If we have two right angle triangles, triangle A is named as D, E, F, and second triangle M, O, P. Now, डी एफ का जो हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, डी एफ का क्या है, हाइपोटेन्यूस है, तो इसके कोरस्पोंडिंग पार्ट ट्रायंगल एमओपी में क्या होगा, इसका हाइपोटेन्यूस एमपी, इसका कोरस्पोंडिंग क्या होगा, एमपी। राइट एंगल ई के कोरस्पोंडिंग क्या होगा, राइट एंगल ओ, और परपेंडिकुलर डीई के कोरस्पोंडिंग क्या है, परपेंडिकुलर एम ओ। ई एफ के कोरस्पोंडिंग है ओ पी, ई एफ के कोरस्पोंडिंग क्या है, ओ पी। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। नाउ कोरस्पोंडिंग पार्ट्स, मतलब कोरस्पोंडिंग पार्ट्स हिंदी में होंगे संगत भाग। ओके, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स और जो ट्राइंगल्स है हमारी, उसमें कोरस्पोंडिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में कोरस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बी, साइड ए बी, ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर की अगर हम बात करें तो ए बी साइड के कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी है, पी क्यू। ए बी के कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी है, पी क्यू। बी सी के कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी है, क्यू आर। और सी ए के कोरस्पोंडिंग क्या है, आर पी। एंगल ए के कोरस्पोंडिंग एंगल है एंगल पी, एंगल बी के कोरस्पोंडिंग एंगल है एंगल क्यू, एंड एंगल सी के कोरस्पोंडिंग एंगल है एंगल आर। These are the corresponding parts in these two triangles. And in congruent triangles,
corresponding parts are equal, and this is known as CPCT, corresponding parts of congruent triangles. Corresponding parts congruent triangles में क्या होंगे? Equal होंगे. Now these are the different congruency rule for triangles. First is side angle side, known as SAS congruence rule. Second one is ASA. Third AAS, triple S and RHS. RHS. इन सभी में A stands for angle. A किसके लिए स्टैंड करेगा? एंगल के लिए. S stands for side and right angle hypotenuse side. RHS. ये रूल डील करेगा राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए. राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए. Okay, now we will discuss in some more explained way SAS criteria for congruency of triangles. ये एरिया हमें क्या कहता है कि if two sides and included angle of one triangle are equal to two sides and included angle of another triangle, then triangle will be congruent by SAS congruency rule. Let us see by the figure. Here you can see two triangles on the screen. Triangle triangle A, B, C and triangle PQR. The triangles are such that AB is equal to PQ. AB is equal to PQ. Side BC is equal to side QR. Side BC is equal to side QR. And included angle between side AB and BC. AB और BC साइड के इंक्लूडेड एंगल मतलब इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल कौन सा है? एंगल B. सिमिलरली साइड PQ एंड QR के बीच का एंगल, इनका इंक्लूडेड एंगल है एंगल Q. अगर एंगल B इक्वल टू है एंगल Q. इस तरह से अगर हमारे पास है कि किसी भी साइड, किसी ट्राइंगल में दो साइड और इंक्लूडेड एंगल मतलब उन दोनों साइड के बीच का एंगल दूसरी ट्राइंगल के कोरस्पोंडिंग साइड्स और उसका इंक्लूडेड एंगल के बराबर हो तो देन ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट. और कौन सा रूल होगा कॉन्ग्रुएंसी का? SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल. साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड. नेक्स्ट ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल. ASA congruency rule. Let us see. If two angles and included side, if two angles and included side of one triangle are equal to two angles and included side of another triangle, then triangles are congruent. Let us explain. If this side angle A, we are given क्या है कि एंगल A is equal to एंगल P. A के corresponding एंगल कौन सा है? एंगल P. एंगल C is equal to एंगल R. And included side means here कि वो साइड जिसके ऊपर ये दोनों एंगल्स बने हुए हैं. जैसे एंगल A और एंगल C कौन सी साइड पे है? AC साइड पे. किस साइड पे है? AC पे. और P और Q किस साइड पे है? PR साइड पे है. अगर हमारे पास ऐसा हो जाए कि नहीं दो ट्राइंगल्स पे दो एंगल्स और वो साइड जिसपे वे दोनों एंगल इम्पोज्ड है आपस में क्या हो जाए? बराबर. तो ट्राइंगल हमारे पास क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट. और कौन सा रूल होगा वो कॉन्ग्रुएंसी का? ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल. नेक्स्ट AAS. देखिए पीछे हमने किया था वो क्या था? ASA. और अभी हम कौन सा कर रहे हैं? AAS.
AAS. These two are different. AAS क्या कहता है? If two triangles have two equal angles and a side adjacent to only one of the angles. If side adjacent is here important, adjacent to only one of the angles that are equal, then triangles are congruent by AAS congruency rule. Now see in figure, if we are given angle A equal to angle P, if we are given कि in triangle ABC and triangle PQR, angle A is equal to angle P and CR, angle C is equal to angle R. अब यहां देखिए हम बात कर रहे हैं कि if two angles and adjacent side, that means कि एंगल A के एडजेसेंट साइड कौन सी है? AB, और एंगल C के एडजेसेंट साइड कौन सी है? BC. तो अगर हमारे पास ये एंगल्स बराबर दे रखे, एंगल A बराबर है एंगल P, एंगल C बराबर है एंगल R, then side AB can be equal to side PQ and side AB is equal to side PQ. और दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि एंगल C की जो एडजेसेंट साइड है कि साइड BC इज इक्वल टू साइड QR. चाहे तो हमारे पास ये हो कि एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल C इक्वल टू एंगल R, साइड AB इज इक्वल टू साइड PQ. और दूसरा केस हो सकता है, ये हो सकता है केस सेकंड में क्या होगा कि एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल C इक्वल टू एंगल R, साइड BC इक्वल टू साइड QR. Then the triangle ABC is congruent to triangle PQR. Next, ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंस रूल. जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, साइड साइड साइड. If three sides of one triangle are equal to corresponding three sides of another triangle, then triangle will be congruent by triple S congruency rule. Explain by the example. Suppose कीजिए कि साइड AC is equal to 5 सेंटीमीटर, साइड RP is equal to 5 centimeter. This is equal to 6 centimeter. AB is equal to 6. PQ is equal to 6 centimeter. CB equal to 7 centimeter and RQ is also 7 centimeter. Then these two triangles will be congruent by triple S congruency rule. Now we will talk morely about कि हमारे पास कुछ कीजिए कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR. Then what will be corresponding part to which side? Okay, side AB will be corresponding, AB की corresponding side कौन सी होगी? PQ. BC के corresponding क्या होगा? QR. और CA के corresponding side होगी RP. That's order is also important. Similarly, angle A के corresponding angle होगा P, B के corresponding angle होगा Q and C के corresponding होगा angle R. तो जिस order में हम triangles को लिखेंगे, corresponding parts उसी order में आएंगे हमारे पास एक दूसरे triangle के. Okay, now we will discuss RHS congruence rule. ये जो कॉन्ग्रुएंसी रूल है वो राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए है और ये हमें क्या स्टेट करता है कि यदि दो राइट एंगल ट्राइंगल्स में दोनों ट्राइंगल्स के हाइपोटेन्यूज इक्वल हो, वन साइड्स इक्वल हो, वन साइड में बी बेस
एंड परपेंडिकुलर। तो ट्राइंगल्स RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए ABC ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल कौन सा है? 90 B। एंगल B इज राइट एंगल, एंड ट्राइंगल PQR इज आल्सो ए राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल Q इज 90 डिग्री। और हमें दे रखा है कि AC दोनों के हाइपोटेन्यूज क्या है? आपस में है बराबर, और एक एक साइड दोनों की बराबर है। एक एक एंगल ऑटोमेटिक ही हमारे पास बराबर है 90 डिग्री के दोनों। तो ये दोनों ट्राइंगल्स RHS रूल से क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। अब हम इन्हीं कॉन्ग्रुएंसी रूल्स का यूज करके एक थ्योरम प्रूव करेंगे। थ्योरम हमें क्या कहती है? ये थ्योरम कहती है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। तो स्टूडेंट्स हम आइसोसेलेस ट्राइंगल्स की बात करें, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स वो ट्राइंगल्स होते हैं जिसमें दो साइड्स क्या हो? बराबर। हमें क्या गिवन है कि अगर हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है एक, तो उसके जो इक्वल साइड्स हैं, मान लीजिए कि ये ट्राइंगल हमारे पास AB, और एक ट्राइंगल हमारे पास यहाँ पे है, सॉरी जो ट्राइंगल दे रखे हैं हमें ABC, आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें कि AB इक्वल टू क्या है? BC। और हमें प्रूव करना है कि AB के मतलब कि एंगल A इक्वल टू एंगल C। देखिए हमें क्या दे रखा है? ये ट्राइंगल्स हमारे पास गिवन है हमें कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। मैं एक फिगर इसको दोबारा बना देती हूँ। हमारे पास इस तरह से ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये नीचे बनी हुई भी है कि ABC इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें गिवन क्या है हमें कि साइड AB इज इक्वल टू BC। और हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल BAD, या मैं कहूं कि एंगल BAC इक्वल टू एंगल BCA। ओके, तो इसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। हमने एक लाइन, मैं यहाँ करती हूँ, फिगर थोड़ा सा क्लियर नहीं है हमारे पास, कि सपोज कीजिए कि BAC ये हमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है जिसमें AB इक्वल टू क्या है? BC। और हमें प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स क्या है? इक्वल हैं, कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BCA। तो उसके लिए हमने कंस्ट्रक्ट किया, क्या कंस्ट्रक्ट किया कि एक लाइन BD ड्रॉ की। किस तरह से ड्रॉ की? कि जो एंगल B को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, और इन पार्ट्स को नाम दे दिया, एंगल्स को नाम दे दिया हमने एंगल A एंड एंगल B। क्या नाम दे दिए? एंगल A एंड एंगल B। तो अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट करके हमने क्या बना लिया? एक ट्राइंगल के दो ट्राइंगल बना लिए, और हमारा एम है कि इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे किसी रूल से। देखिए कि ट्राइंगल ABD एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? BDC। बेटे AB इक्वल टू क्या दे रखा है हमें? AB इज इक्वल टू BC गिवन है, और एंगल A इक्वल टू क्या है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। किससे? ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है, ये हमने क्या किया है? कंस्ट्रक्ट किया है। और BD इक्वल टू BD, ये कैसी है? कॉमन साइड, दोनों में कैसी है? कॉमन साइड। तो अब ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल BDC में क्या हुआ? साइड एंगल साइड, क्या हुआ? साइड एंगल साइड। भाई दो भुजाएं कोरस्पोंडिंग साइड्स बराबर हो गई, एक इंक्लूडेड एंगल बराबर हो गया। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कैसी होगी? कॉन्ग्रुएंट। कौन से रूल से? SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से। तो हम क्या कहेंगे कि ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल B
डी, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी डी, किससे? ए एस ए से। और कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं? बराबर। तो अब हम क्या कहेंगे? सीपीसीटी से बाई सीपीसीटी, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल बी सी डी। तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी, है ना? ये इंटरेस्टिंग। ओके, वन मोर एप्लीकेशन। इसमें क्या कहता है कि द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। हमें क्या दे रखा है कि किसी एक ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल दे रखे हैं। जैसे कि इस ट्राइंगल में क्या दे रखा है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, और हमें ये ए बी इक्वल टू बी सी क्या करना है? प्रूव करना है। ए बी इक्वल टू बी सी क्या करना है? हमें प्रूव करना है। तो इसमें भी सेम हमने वही कंस्ट्रक्ट किया। तो क्या क्या गिवन क्या है? हमें गिवन है एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। कंस्ट्रक्ट क्या किया हमने? कंस्ट्रक्ट किया बी डी जो लाइन है, लाइन सेगमेंट, और इस तरह से किया है कि वो एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। इस बी डी को हमने इस टाइप से कंस्ट्रक्ट किया कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, तो ट्राइंगल ए बी डी, और दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास ट्राइंगल ए बी डी बी सी डी, ट्राइंगल सी बी डी। क्या क्या है हमारे पास? एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ये तो हमें गिवन है। ओके, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। और बी डी इक्वल टू बी डी, ये क्या है? दोनों की कॉमन साइड है। तो ए ए एस, ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से, ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या कहता था कि यदि इफ इन टू ट्राइंगल्स टू एंगल्स एंड ओनली वन साइड एडजेसेंट टू एनी एंगल, दो एंगल्स जो बराबर हैं उनके एडजेसेंट कोई भी एक साइड है वो दूसरी ट्राइंगल्स के अगर इक्वल है ट्राइंगल में भी, तो ट्राइंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंस। और कौन से रूल से? ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्राइंगल्स क्या हो गए? ट्राइंगल ए बी डी इज को, तो हम ये कह सकते हैं ना कि ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी डी। और सीपीसीटी से फिर हमें क्या मिल गया कि देयर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। तो साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ए बी, साइड ए बी इज इक्वल टू साइड बी सी। ये चीज हमें प्रूव करनी थी। इट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।